Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so first of all, I welcome all of you in this practical. So, good morning to everyone. Yes, all of you, please put your roll numbers in the chat box. Yes, please let me know. Can you able to see my screen? Yes, can you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So, see, please remember once we have started our practical, then I am not able to see your messages in the chat box. So it's better you just unmute yourself, and if you are having any kind of query or if you want to ask something, then you just unmute yourself and you can ask. Is that clear to everyone? Okay. Now remember, we have already completed our first two practicals based on Visual Basic. So in today's session, we are going to begin with our third practical. So let me first open the app of Visual Basic. For that, you just go to this search option and just type Visual there. Then you will find Microsoft Visual Basic 6.0 in the application. So you just click on it and try to open it. Okay, so I am pressing open. सो इस तरीके से हमें हमारा फर्स्ट फॉर्म हमें मिल जाएगा जहाँ पे हमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म करना है अगेन इन दिस प्रैक्टिकल वी नीड टू परफॉर्म टू क्वेश्चंस and let me tell you these are slightly the bigger questions, so please try to understand the concept behind each question. Okay, so first step is you just enlarge the form. Okay, now can anyone read the first question for us so that we can go ahead in the practical? Yes, anyone. I hope you are having your practical sheet with you. Is it? है सबके पास practical sheets? At least say yes or no so that I can understand. Yes, sir. Okay, so read करो first question क्या है? Write a project which provides the following income tax slab along with the tax rates irrespective of gender. Design a suitable form for the monthly income and gender of a person. Calculate, display total tax and annual net pay of the person. Okay, so आपके practical sheet में आपको एक question दिया है. Let me show that question on your screen. Yes. Can you able to see these questions?
Yes, sir. ओके, सो ये क्वेश्चन हमें दिया है और हमारे पास एनुअल इनकम एंड टैक्स रेट दिया हुआ है इन द प्रॉब्लम। ओके, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो एंड टेल मी हाउ मेनी लेबल्स, हाउ मेनी टेक्स्ट बॉक्सेस, हाउ मेनी कमांड बटन्स वी नीड टू यूज इन दिस क्वेश्चन। या यू जस्ट गेस। सो पहले तो ये बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें। You can see write a project which provides the following income tax slab along with the taxes rate irrespective of gender. Okay, means हमें gender भी mention करना है, male है या female है। Then design a suitable form for monthly income. So monthly income कितनी है ये भी हम enter करेंगे। सो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स और एक लेबल लगेगा फॉर मंथली इनकम। देन जेंडर ऑफ ए पर्सन, तो ये हम एक फ्रेम में एंटर करेंगे, वहां पे हमें हमारे पास दो ऑप्शन बटन्स रहेंगे, वन फॉर मेल अनदर फॉर फीमेल। देन वी नीड टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल टैक्स एनुअल नेट पे। सो एनुअल नेट पे के लिए हमें पहले एनुअल इनकम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो हम एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे फॉर एनुअल इनकम। Then we required one label, one text box for tax, and one label and one text box for net pay. So, how many labels we are going to use? Four labels and four text boxes. Then, how many command buttons we required to perform this question? Yes. See, दो कमांड बटन्स तो हमें बाय डिफॉल्ट लगते हैं, और कौन से होते हैं वो दो कमांड बटन्स? Clear and वन exit. फॉर वन फॉर क्लियर एंड वन फॉर एग्जिट, और एक और कमांड बटन हमें चाहिए फॉर कैलकुलेट। ओके, सो हम थ्री कमांड बटन्स यूज करेंगे, फोर लेबल्स, फोर टेक्स्ट बॉक्सेस एंड वन फ्रेम फॉर जेंडर। इज द आइडिया क्लियर? Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट परफॉर्मिंग। So we required four labels. So let me add labels one by one. So this is my label one, label two. So if you want, you can adjust the size of each label. Then label three and label four. ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें फोर टेक्स्ट बॉक्स भी लेना है। सो लेट मी ऐड दोज टेक्स्ट बॉक्सेस वन बाय वन। Okay, so here I have added four labels and four text boxes. Then we required one frame. So let me add that frame over here.
Now in this frame, we are going to add two option buttons, one for male and one for female. Okay. And we required three command buttons, one for clear, uh, one for exit and one for calculate. Okay. So basically this is our design of the form. So here I have added four labels, four text boxes, one frame with two option buttons and three command buttons. This is our first step, that is design a form. So all of you take the screenshot of this. Okay, now can anybody tell me what is our second step? डिजाइन करने के बाद हम क्या करते हैं? Yes, anyone? Otherwise, I need to call your names. So please someone unmute yourself and tell me what is our next step. डिजाइन करने के बाद हम क्या Sir, करेंगे? properties. So second step is what? Set the properties for each object. Okay. So पहले हम वन बाय वन प्रॉपर्टी चेंज करते हुए चलेंगे. ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज इन योर नोटबुक साइमल्टेनियसली. ओके. सो सबसे पहले हमें फॉर्म वन की प्रॉपर्टी चेंज करनी है. ओके, हम फॉर्म वन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लेबल्स पर जाएंगे, फिर टेक्स्ट बॉक्सेस, फ्रेम एंड कमांड बटन्स. ओके. सो अपनी नोटबुक साथ में रखो और उसमें ये डिजाइन के लिए थोड़ा सा स्पेस रखो. बाद में एक कॉलम बनाओ फॉर प्रॉपर्टीज. उसमें तीन कॉलम आएंगे. एक टेबल बनाओ, उसमें तीन कॉलम आएंगे. फर्स्ट कॉलम इज ऑब्जेक्ट, सेकेंड कॉलम इज प्रॉपर्टीज एंड द थर्ड कॉलम इज वैल्यू. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा होगा फॉर्म वन. ओके. सो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने इस फॉर्म में ऐड किए उनको छोड़ के आप कहीं पर भी इस फॉर्म पे क्लिक करो. सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया. देन यू विल फाइंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑन द राइट हैंड साइड. ओके. सो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म वन के प्रॉपर्टीज आ गए. अब फॉर्म के लिए हम कौन से दो प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे? यस, Name and caption. नेम एंड कैप्शन. सो व्हाट इज द प्रेफिक्स फॉर फॉर्म? FRM. FRM. ओके, रिमेंबर फॉर्म के लिए हम ये प्रेफिक्स डालेंगे FRM. ओके. Please remember the first three letters in the name properties are very important with respect to each object. इसके बाद में आप कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर. ओके. अब हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. तो मैं इसे नेम दे रहा हूं FRM टैक्स. ओके. और कैप्शन में जो भी हम लिखेंगे वो हमारे फॉर्म पे डिस्प्ले होगा. तो कैप्शन में मैं लिख रहा हूं टैक्स कैलकुलेशन बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन टैक्स कैलकुलेशन. तो यू कैन सी जो भी हमने लिखा वो हमारे फॉर्म पे एज इट इज शो हो रहा है. इफ यू वांट यू कैन कलर दिस फॉर्म ऑल्सो. गो टू पैलेट, select any color and see what magical happens. If you want, you can increase the font size also.
ओके, वो हम नेक्स्ट इनके लिए यूज करेंगे। सो ये हो गया हमारा फॉर्म के लिए। दैट इज फॉर्म के हमने दो प्रॉपर्टी चेंज किए। फर्स्ट वन इज नेम, सेकेंड वन इज कैप्शन प्रॉपर्टी। नेम में हमने लिखा FRM टैक्स, कैप्शन में हमने लिखा टैक्स कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं लेबल वन पे। सो क्लिक ऑन लेबल वन, देन यू विल फाइंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑन द राइट हैंड साइड। सो टेल मी व्हाट इज द प्रेफिक्स फॉर लेबल? यस, what is the prefix for label? Yes, otherwise I am going to call your names. Just unmute yourself. I am not asking any difficult thing. Prefix means short form of label. क्या है short form of label? LBL. LBL. Okay. So LBL. अब हमें क्या करना है? फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में हम मंथली इनकम एंटर करेंगे। सो LBL के बाद हम वो 3 लेटर्स या 4 लेटर्स लिखेंगे जो हम इस लेबल में एंटर करने वाले हैं। सो इसमें हम मंथली इनकम एंटर करेंगे। सो आई एम गिविंग इट्स नेम एज LBL M इनकम। ओके, that is LBL MINC. M denotes monthly, INC denote income। और इसके लिए हम कैप्शन प्रॉपर्टी भी चेंज करेंगे। कैप्शन में हम लिखेंगे मंथली इनकम। ओके, अब मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं सो दैट यू कैन एबल टू सी इट। यस, प्लीज लेट मी नो, दिख रहा है सबको ये? यस, कैन यू एबल टू सी दैट? Yes, sir. ओके, सो इसका हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया तो हमें ये ऐसे शो हो रहा है। सो लेबल वन के लिए हमने फिर से 3 प्रॉपर्टी चेंज की। फर्स्ट वन इज नेम, सेकेंड वन इज कैप्शन एंड द थर्ड वन इज फॉन्ट। ओके, अब हम चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स वन के लिए। अब टेक्स्ट बॉक्स वन में हम मंथली इनकम लिखने वाला है वाइल रनिंग द प्रोग्राम। सो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो हम बाद में चेंज करेंगे, पहले इसे नेम देते हैं। सो व्हाट इज द प्रेफिक्स फॉर टेक्स्ट बॉक्स? ये शॉर्ट फॉर्म क्या है टेक्स्ट बॉक्स का? TXT. TXT। ओके, बाद में हम जो भी लिखेंगे वो इररिस्पेक्टिव होगा, लेकिन हमें वो लिखना है। सो इसमें हम मंथली इनकम ऐड करने वाला है। सो टेक्स्ट बॉक्स को भी हम नेम दे रहे TXT MINC, मीन्स मंथली इनकम। और इसके लिए हमें इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी रखनी पड़ेगी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम रखेंगे ब्लैंक, बिकॉज वी नीड टू एंटर अ वैल्यू वाइल रनिंग द प्रोग्राम। सो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ब्लैंक रखेंगे और इसका भी हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अभी ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें अभी तक कुछ नहीं लिखा है। देन डू द सेम थिंग फॉर लेबल टू। सो लेबल टू के लिए प्रेफिक्स है LBL and in label 2 we are adding annual salary. So I am right, or you can say annual income. So इसे मैं नेम दे रहा हूं LBL annual। Okay, please remember these names.
or write down these names in your notebook so that there will be no confusion. So लेबल 2 को हमने नेम प्रॉपर्टी दी LBL एनुअल, और कैप्शन में हम लिखेंगे एनुअल इनकम. ओके, बाद में हम इसकी भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे सो दैट यू कैन एबल टू सी इट. ओके, सो इसके सामने जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा इसमें हम एनुअल इनकम डिस्प्ले करेंगे. ओके, बेस्ड ऑन मंथली इनकम. सो इसके लिए भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले सेट कर देंगे. सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट बॉक्स के लिए पहले हम नेम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, दैट इज txt एनुअल. और इसके लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी रखेंगे ब्लैंक. देन इसकी फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं. एंड रिमेंबर, अब इसके लिए हम और एक प्रॉपर्टी चेंज करने वाले हैं, दैट इज एनेबल प्रॉपर्टी. ओके, एनेबल प्रॉपर्टी. सो यू कैन सी बाय डिफॉल्ट एनेबल प्रॉपर्टी में ट्रू लिखा हुआ रहता है, हम उसे फॉल्स करने वाला है. ओके, सो टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए हमने 3 प्रॉपर्टी चेंज की, इनफैक्ट 4 प्रॉपर्टी चेंज की. ओके, कौन से, एक तो हो गया नेम, सेकंड हुआ टेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड हुआ फॉन्ट, एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एनेबल्ड. एनेबल्ड को हमने फॉल्स वैल्यू दी है. क्यों? क्योंकि जब हम किसी को भी फॉल्स वैल्यू देते हैं तो वो, जब हम कोई भी कमांड से क्लियर करते हैं तो वो अपनी वैल्यू फिक्स रखता है, चेंज नहीं होती उसकी वैल्यू. ओके, दैट इज द यूज ऑफ एनेबल प्रॉपर्टी. सो इसमें जो भी हम वैल्यू आएगी वो फिक्स रहेगी. देन लेबल 3 में अगेन हम लेबल 3 के प्रॉपर्टी चेंज करेंगे. सो नेम प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे LBL. अब इसमें हमें टैक्स एंटर करना है. सो मैं इस लेबल को नेम दे रहा हूं LBL टैक्स. कैप्शन में हम लिख रहे हैं टैक्स. ओके, और इसके लिए मैं फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूं सो दैट यू कैन एबल टू सी इट. ओके, नाउ इसके सामने जो भी टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम टैक्स एंटर करेंगे. सो इसके लिए भी हमने प्रॉपर्टी चेंज करनी है. नेम प्रॉपर्टी इज txt टैक्स. देन टेक्स्ट प्रॉपर्टी ब्लैंक. और इसके लिए भी हम एनेबल्ड ऑप्शन को फॉल्स सिलेक्ट करेंगे. ओके, सो इसके लिए हम 3 प्रॉपर्टी चेंज, इनफैक्ट 4 प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं. सो एनेबल प्रॉपर्टीज में हमने लिया फॉल्स, एंड फॉन्ट साइज भी हम इसकी चेंज कर देंगे बोल्ड एंड 15. ओके, देन डू द सेम थिंग फॉर लेबल 4. अब लेबल 4 में हम क्या डालेंगे? नेट पे. सो इसके लिए मैं नेम लिखूंगा LBL नेट. ओके, और कैप्शन में हम लिखेंगे नेट पे. फिर इसके लिए भी मैं फॉन्ट साइज एनलार्ज कर देता हूं so you can see it properly. सी एनेबल हमें टेक्स्ट बॉक्स के लिए करना है, ना कि लेबल के लिए.
Okay. So click on now text box 4. Make the changes in the properties. So name is txt, net. Then enable properties false. Font size increase to 15. और इसकी भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी रखेंगे, ब्लैंक. So here I am keeping its text property as blank. अभी ये तो हो गया हमारा लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए. अब हम किसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, अब हम चेंज करेंगे फ्रेम की प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज द प्रेफिक्स फॉर फ्रेम? यस, FRA. 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 और हम इस फ्रेम में क्या एंटर करने वाले हैं, जेंडर. सो मैं नेम के बाद लिख रहा हूं जेंडर. सो FRA जेंडर. कैप्शन प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे सिलेक्ट. ओके. Or if you want to write, you can write gender also. Okay, it is not sender, it is gender. Okay, so caption property में हमने लिखा gender. अब हम इसकी भी font size increase कर देते हैं so that you can able to see it. Okay, so caption property for the frame में हमने लिखा gender. अब हम ऑप्शन बटन्स के प्रॉपर्टी चेंज करेंगे. सो क्लिक ऑन ऑप्शन 1. देन ऑप्शन बटन के लिए व्हाट इज द प्रीफिक्स? OPT. OPT. और इसमें हम जेंडर एंटर करेंगे. सो मेल के लिए MALE, OPT मेल. कैप्शन प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे मेल. और फॉन्ट साइज में हम यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं करना चाहते, लेकिन एज दिस इज ऑनलाइन सो आपको ये प्रॉपरली शो नहीं होता, इसीलिए हम फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं. अदरवाइज फॉन्ट साइज को चेंज करने की जरूरत नहीं है. देन क्लिक ऑन सेकेंड ऑप्शन, चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, मेक इट्स नेम एज OPT फीमेल and caption properties female. ओके और फिर से मैं इसकी साइज इंक्रीज कर दूं. सॉरी. सो ये हो गया हमारा फ्रेम के लिए. अब हम चेंज करेंगे कमांड बटन्स के लिए. सो पहले कमांड बटन को हम नेम देंगे. पहले तो ये बताओ व्हाट इज द प्रेफिक्स फॉर कमांड बटन? CMD. CMD. और इसे मैं लिख रहा हूं CMD CAL. CAL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैलकुलेट. सो कैप्शन बटन में हम लिखेंगे कैलकुलेट. कैप्शन में इस कमांड बटन के लिए हमने लिखा कैलकुलेट. लेट मी चेंज इट्स फॉन्ट साइज. ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा कैलकुलेट. देन बाकी के दो कमांड बटन, इनके लिए तो आपको पता ही है क्या करना है. एक आएगा CMD क्लियर. इसके लिए कैप्शन प्रॉपर्टी होगी क्लियर. देन फॉन्ट साइज सेम 15. And the third one is exit button. So name property is CMD exit. And the caption property is exit. फॉन्ट साइज फिर से चेंज कर देता हूं. ओके, सो ये हो गया हमारा डिजाइन ऑफ द फॉर्म.
ओके, इस तरीके से हमारे फॉर्म में डिजाइन रहेगी. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज सेट द प्रॉपर्टीज. अब थर्ड स्टेप कौन सा होगा? यस, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? कोडिंग. कोडिंग सेक्शन. ओके, सो अब हमें कोड लिखना है फॉर रनिंग द प्रोग्राम. ओके, सो कोड कोड सेक्शन ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? यू जस्ट प्रेस डबल क्लिक, यू जस्ट डू द डबल क्लिक ऑन कैलकुलेट बटन. पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ डबल क्लिक ऑन कैलकुलेट बटन. जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे आपको कोडिंग का सेक्शन ओपन होगा. ओके, सो अब हमें इसकी कोडिंग लिखनी है. सो कोडिंग लिखने से पहले हम आउटसाइड वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे हमें. ओके, सो इसके लिए हमें कितने वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी? यू कैन सी. फर्स्ट वेरिएबल होगा मंथली इनकम, सेकेंड वेरिएबल होगा एनुअल इनकम, थर्ड वेरिएबल होगा टैक्स, एंड द फोर्थ वेरिएबल इज फॉर नेट पे. सो हमें इसमें 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी. सो वेरिएबल हम किससे डिक्लेयर करते हैं? विच ऑपरेटर? यस, तो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं यूजिंग डायमेंशन ऑपरेटर, एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायमेंशन इज डिम. सो मंथली इनकम के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एम आई, एनुअल इनकम के लिए ए आई, टैक्स के लिए टी ए एक्स, एंड नेट पे के लिए एनपी. और इनका डेटा टाइप हम रखेंगे डबल, एज डबल. ओके, सो ये हमने कर दिया वेरिएबल डिक्लेयर. अब हम चलते हैं कोडिंग सेक्शन में. सो कोडिंग हम पहले डालेंगे कैलकुलेट बटन के लिए. सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एनुअल इनकम, टैक्स एंड नेट पे. ओके, और हम एंटर क्या करने वाले हैं? वाइल रनिंग द प्रोग्राम हमें मंथली इनकम एंटर करनी पड़ेगी. सो मंथली इनकम हम एंटर किस में करेंगे? इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में. ओके, दैट इज द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स? txt, then MINC, that is monthly income. इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमने चेंज की? टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट? सो txt MINC टेक्स्ट प्रॉपर्टी. और ये हम किसे असाइन करेंगे? ये हम असाइन करेंगे वेरिएबल MI, दैट इज मंथली इनकम. लेकिन ये क्या होगा? ये एज अ टेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रीट होगी. मीन्स जो भी नंबर हम एंटर करेंगे इन टेक्स्ट बॉक्स 1, वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा. सो उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे. सो यूज वैल्यू फंक्शन आउटसाइड द txt minc डॉट टेक्स्ट. ओके,
ये क्लियर है? विच मीन्स वॉट? ये जो भी वैल्यू हम इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे वो हम असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल mi को। ओके। अब हमें इस mi से एनुअल इनकम फाइंड आउट करनी है। सो एनुअल इनकम हम असाइन करेंगे ai को, बिकॉज ai इज द वेरिएबल फॉर एनुअल इनकम। सो कोई बता सकता है मंथली इनकम से एनुअल इनकम कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? यस। या फिर अगर आप इसे इजी लैंग्वेज में समझो तो आप इस तरीके से कंसिडर करो, आपको आपके पेरेंट्स मंथली 12 चॉकलेट्स देते हैं, तो एक साल में कितने चॉकलेट्स देंगे? 144. 144। क्या किया आपने? Monthly chocolates divide by 12 months. मंथली चॉकलेट डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 12। Sorry. ओके, सो एनुअल इनकम हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें मंथली इनकम पता है, और हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स रहता है। सो एनुअल इनकम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मंथली इनकम मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, क्योंकि मंथली इनकम हमने किस में डाली है, कौन से वेरिएबल में? mi वेरिएबल में। इसीलिए हम यहाँ पे mi वेरिएबल यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो इससे मुझे मिल जाएगा एनुअल इनकम बेस्ड ऑन दिस मंथली इनकम। ओके, अब हमारे पास टैक्स स्लैब गिवन है। लेट मी शो दैट वंस अगेन। सो ये हमारे पास टैक्स स्लैब गिवन है, दैट इज एनुअल इनकम अगर 0 से 1,50,000 रहती है, सो टैक्स रेट आएगा 0। अगर 1,50,000 से बड़ी और 2 लाख से छोटी रहेगी तो हम डालेंगे 10% टैक्स रेट, और अगर 2 लाख से एक्सीड करती है तो हम लिखेंगे 20% ऑन एनुअल इनकम। सो यू कैन सी यहां पे हमारे पास 3 कंडीशंस है। जब हमारे पास 2 कंडीशंस रहती है, जैसे जैसे कि हमने प्रैक्टिकल 2 में क्वेश्चंस परफॉर्म किए, तो वहां पे हमारे पास 2 ही कंडीशंस थी, तब हमने सिंपली इफ कंडीशन यूज की थी। अब हमारे पास मोर देन 2 कंडीशंस है, तो हम नेस्टेड इफ सीक्वेंस यूज करेंगे। नेस्टेड इफ मीन्स व्हाट? इफ इनसाइड अदर, बिकॉज यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस एट अ टाइम चेक करनी है। सो पहले हम इफ कंडीशन यूज करते हैं। सो इफ क्या चेक करना है हमें? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम लेस देन और इज इक्वल्स टू कितनी रहनी चाहिए? अगर 1,50,000 है, देन टैक्स हमें कितना देना है? यू कैन सी, अगर एनुअल इनकम 0 से 1,50,000 के बीच में रहेगी तो हम टैक्स कितना देंगे? जस्ट थिंक ऑन इट एंड टेल मी। Sir, nil means 0%. यस, सो टैक्स होगा 0%।
ओके, सो यहाँ पे आएगा टैक्स इज 0. क्लियर? देन सो ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन, वेन एवर एनुअल इनकम इज बिटवीन 0 to 1,50,000. सो हम टैक्स देंगे नील. नील मीन्स 0. अब जब हमारी एनुअल इनकम होगी इन बिटवीन 1 lakh, more than 1,50,000 and less than or is equals to 2 lakh. सो उसके लिए हम यूज करेंगे एलसिफ. सो एलसिफ AI is bigger than or is equals to, अब हमें 1,50,000 से बिगर लेना है. ओके, बिकॉज यहाँ पे हमने लेस देन और इज इक्वालिटी ली है, तो यहाँ पे आएगा 1,50,000. सो यहाँ पे हम 1,50,000 से बड़ा लेंगे. सो हम लिखेंगे 1,50,001. ओके, एंड the upper bound for AI is less than or is equals to 2 lakh. Okay, so wait a minute, error change कर ले. else if AI is bigger than or is equals to 1,50,001 and AI is less than or is equals to 2 lakh, then ओके, देन टैक्स स्लैब हमें कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा अब? लेट मी 10%. शो यू दैट वंस अगेन. यस, टैक्स रेट कितना है अब? 10%. 10%. लेकिन यहां पे ध्यान दो, टैक्स इज इक्वल्स टू, अब हमें 10% किस पे कैलकुलेट करना है? पूरे सैलरी पे या जो सैलरी 1,50,000 और 2 लाख के बीच में रहेगी? ओके, दैट इज एनुअल इनकम माइनस फर्स्ट 1,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं कटा. ओके, सो इसे तो हमें एज इट इज रखना है. तो हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम में से ये जो इनिशियल के 1,50,000 थे, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. फिर जो भी अमाउंट बचेगी उस पर हम 10% कैलकुलेट करेंगे. सो 10% को आपको आप दो तरीके से लिख सकते हो. फर्स्ट वन इज 10 डिवाइडेड बाय 100 और 0.1. समझा? इज दैट क्लियर? और 0.1 क्यों लिखा? बिकॉज 10% इज नथिंग बट 10 डिवाइडेड बाय 100. सो 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको 0.1 ही मिलेगा. तो ये हुई हमारी कंडीशन, वेन एवर आवर एनुअल सैलरी इज बिटवीन 1,50,000, मोर देन 1,50,000 एंड लेस देन और इज इक्वल्स टू 2 lakh. Then the third condition is what? Whenever our salary is bigger than 2 lakh. So else annual salary is bigger than or is equals to
2,01,000. ओके, और ये भी कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है, एल्स में तो ये ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा, बिकॉज एल्स वाला पार्ट मीन्स व्हाट, जब फर्स्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो, सेकंड वाली भी सेटिस्फाई ना हो, तब ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है. सो एल्स पार्ट में हमें कोई कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है. सो एल्स टैक्स कितना कैलकुलेट करेंगे अब? लेट मी शो यू वंस अगेन. यस, कितना टैक्स कैलकुलेट करना है? अगर एनुअल सैलरी 2 लाख से एक्सीड करती है तो कितना टैक्स कैलकुलेट करेंगे? 20%. 20%. Okay, and 20% is nothing but 0.2. बट ये 20% कैलकुलेट होगा वो सैलरी पे जो 2 लाख से एक्सीड करती है. ओके, सो यहां पे हम लिखेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल इनकम माइनस 2 लाख. ओके, मीन्स जो भी सैलरी 2 लाख से एक्सीड करेगी उस पर हमें 20% कैलकुलेट करना है. सो एनुअल सैलरी से मैं अगर 2 लाख रिमूव कर दूं तो मुझे मिल जाएगा सैलरी जो 2 लाख से बड़ी है. लेकिन उन सैलरी का क्या जिनका से इस एल्स पार्ट में फर्स्ट जो इनिशियल के 2 लाख है, सो फर्स्ट 1,50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं है. लेकिन जो नेक्स्ट 50,000 है उन पर हमें 10% टैक्स कैलकुलेट करना है. सो वो 10% हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. सो 10% मीन्स 0.1, और कितने पर? जो बचे हुए 50,000 है. ओके, सी बिकॉज इन दिस थर्ड वन, यहाँ ये पार्ट तो मुझे खाली देगा एनुअल सैलरी विच आर बिगर देन 2 लाख, उन पर हमें 20% कैलकुलेट करके देगा. लेकिन जो 1,50,000 एंड 1 से 2 लाख तक है उन पे हमें 10% कैलकुलेट करना है. मीन्स 1,50,000 एंड 1 और 2 लाख के बीच में कितने हैं? 50,000 है. सो उन 50,000 पे 10% कैलकुलेट करना है. सो इससे मुझे मिल जाएगा 10% ऑन दैट. ओके, तो यहाँ पे हम हमारे इफ कंडीशन फिनिश करेंगे बिकॉज ऑल द 3 कंडीशंस आर इंक्लूडेड. सो एंड इफ सो यहाँ पे हमारे तीनों कंडीशंस इंक्लूड हो गए. तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? एनुअल इनकम और टैक्स भी पता चल जाएगा. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट पे. नेट पे के लिए हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया? एनपी. सो एनपी इज इक्वल्स टू, हम नेट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी एनुअल सैलरी होगी उसमें से जितना भी टैक्स आएगा उसे आपको रिमूव करना है. सो आप क्या लिखोगे? एनुअल सैलरी माइनस टैक्स. सो इससे हमें मिल जाएगा नेट पे. देन एंटर. सो ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया. अब हमें इनके टेक्स्ट बॉक्सेस में भी शो करने पड़ेंगे ये जो भी नंबर्स कैलकुलेट हो रहे हैं. सो हम वो भी 1 बाय 1 करते हैं. सो एनुअल इनकम के लिए टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स 2. टेक्स्ट बॉक्स 2 को हमने नेम क्या दिया था? TXT एनुअल. डॉट इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की थी? टैक्स प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू. अब इसमें हम लिखेंगे फॉर्मेट नंबर.
Okay, so format number is basically a function as like your format currency. Okay, और इसमें हमें लिखना है AI. सो ये मुझे देगा टेक्स्ट बॉक्स 2 में एनुअल सैलरी. देन टेक्स्ट बॉक्स 3 में हमें टैक्स कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था? TXT टैक्स डॉट. इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की थी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू, फिर से हम सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, दैट इज फॉर्मेट नंबर. और इसमें अब हम लिखेंगे टैक्स. ओके, और थर्ड है हमारा नेट पे. सो हमने उसके लिए नेम दिया था TXT नेट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू. अब इसके लिए आप चाहो तो फॉर्मेट नंबर यूज करो, या फॉर्मेट करेंसी यूज करना चाहो तो फॉर्मेट करेंसी यूज करो. तो इसके लिए मैं फॉर्मेट करेंसी यूज करता हूं. सो फॉर्मेट करेंसी में हम क्या, किसकी वैल्यू चाहिए हमें? NP की. सो पुट NP. सो इससे मुझे मिल जाएगा एनुअल इनकम इन द सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स, टैक्स इन द थर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड NP वैल्यू इन द फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स. सो ये तो हो गया हमारे कैलकुलेट बटन के कमांड्स. अब हमें डालना है क्लियर एंड एग्जिट बटन के लिए कमांड. सो क्लियर बटन के लिए डालते हैं. सो क्लियर बटन में हमें क्या क्या क्लियर करना पड़ेगा? फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स? TXT MINC डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू. Then second text box is annual income. So TXT annual dot text okay, TXT annual dot text is equals to give the space in the double quotes. Then the third one is TXT tax dot text is equals to, give the space in the double quotes. And the last one is nothing but what? Net pay. So TXT net dot text is equals to space. Then enter. अब आप चाहो तो सेट फोकस वाली कमांड डाल सकते हो. अगर आपको कर्सर ब्लिंक करवाना है सो आप लिखोगे TXT MINC that is first text box dot set focus. ओके, और अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑप्शन बटन्स के लिए फॉल्स वैल्यू सेट करेंगे, जैसे आपने प्रैक्टिकल 2 में किया था. सो OPT मेल डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू false. Then OPT female dot value OPT female dot value is equals to false. ओके, ये हो गई हमारी क्लियर बटन के लिए कमांड.
अब हमें डालना है एग्जिट बटन के लिए, सो यू जस्ट सिलेक्ट CMD एग्जिट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। और एग्जिट बटन के लिए तो कमांड सबको पता है, यू जस्ट राइट एंड इन दैट। ओके, सो ये हो गई हमारी कोडिंग। सो पहले तो हम रन करके देखते हैं, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो लेट अस ट्राई टू रन इट। सो देखो, रन करने के बाद अगर मैं 1 लाख ही कंसीडर करूं, माय मंथली इनकम इज 1 लाख, सो एनुअल इनकम कितना होगा? यस, 12 lakhs. 12 लाख। सो कैलकुलेट बटन पे मैं क्लिक करता हूं। सो देखो, एनुअल इनकम आया 12 लाख। टैक्स, टैक्स कितना है? 2,05,000। Because here our annual income is 12 lakh, which is bigger than 2 lakh. Okay, इसीलिए टैक्स कैलकुलेट हुआ है। और नेट पे में हमने फॉर्मेट करेंसी दिया था, इसीलिए यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज हुआ। और एनुअल इनकम और टैक्स में हमने फॉर्मेट नंबर डाला था, इसीलिए ये नंबर के फॉर्मेट में फुल स्टॉप के बाद में 2 डिजिट्स आपको मिले और यहाँ पे कॉमा मिल रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेट नंबर। ओके, और देखो ये वैल्यू एकदम डार्क है और ये लाइट वेट्स है। ओके, लाइट कलर में शो हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट एनेबल प्रॉपर्टी। एनेबल प्रॉपर्टी हमने फॉल्स रखी थी, तो कोई भी इन तीनों की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। आप खाली मंथली इनकम के ही वैल्यू चेंज करोगे और उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपको इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स में मिल जाएंगे। अब क्लियर करके देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं होता। सो यू कैन सी क्लियर हो गया और कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है इन द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। ओके, अगर मैं मेल और फीमेल चेक करूं, सो इन ऑप्शन बटन्स के लिए तो हमने कुछ नहीं डाला है। ओके, दिस इज अननेसेसरी थिंग। ओके, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास मेल और फीमेल दो उन्होंने बोला है, यू कैन सी उन्होंने बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। सो जेंडर पे तो कोई भी कंडीशन नहीं है कि अगर वो फीमेल होगा तो इतना टैक्स कैलकुलेट करो, मेल होगा तो इतना टैक्स कैलकुलेट करो। सो ये जेंडर ऑफ ए पर्सन यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता। ओके, सो दिस इज, ये अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है अगर फीमेल होगी तो उस पर ये कंडीशन अप्लाई करनी है और मेल हुआ तो ये कंडीशन अप्लाई करना है। सो यहाँ पे ये जेंडर वाली जो भी फ्रेम है वो अननेसेसरी है, वो नहीं लिया फिर भी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? अब मान लो मैं 10 रुपीज लेता हूं। ओके, मान लो मेरी इनकम 10 रुपीज है। सो एनुअल इनकम कितनी होगी मेरी? 120 rupees. 120 रुपीज। सो 120 रुपीज पर कोई टैक्स लगेगा? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यू कैन सी 120 पे कोई टैक्स लगने वाला है? No, sir. नो। सो टैक्स अगर कुछ भी नहीं लगेगा तो टैक्स में हमें 0 शो होगा और नेट पे क्या आएगा? एनुअल इनकम माइनस टैक्स मीन्स 120 माइनस 0।
सो नेट पे में भी हमें 120 शो होगा. लेट अस सी दैट. यू कैन सी टैक्स आया 0, नेट पे आया 120. वाई? बिकॉज ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज एनुअल इनकम इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1,50,000. सो टैक्स रेट इज 0. अब आप कोई एक वैल्यू दो जो 1,000 एंड मीन्स 1,50,000 और 2 लाख के बीच में रहे. सो यहाँ पे पहले तो मैं क्लियर कर दूं. यहाँ पे अगर मैं 1,000 करता हूं सो एनुअल इनकम आएगा. कितना आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 12. सो 12,000 आएगा. 12,000. सो इससे भी नहीं होगा. सो 10,000 करते हैं. 10,000 से भी नहीं होगा. 15,000 लेते हैं. ओके, सो 15,000 की सैलरी आती है 10 मंथ की 1,50,000 और नेक्स्ट 2 मंथ्स की आप कैलकुलेट करोगे तो वो लाई करेगी इन बिटवीन 1,50,000 एंड 2 लाख. सो इसके लिए हम चेक करते हैं एनुअल इनकम और टैक्स. टैक्स और नेट पे क्या आता है. ओके, सो ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन. दैट इज this 1,80,000 is lying between 1,50,000 and 2 lakh. सो इसके ऊपर टैक्स कितना कैलकुलेट होगा? 10%. आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो अब मैं क्लियर करके एग्जिट करता हूं. आप कोडिंग का स्क्रीनशॉट ले लो. देन बाद में हम एक आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे. सो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रॉल करूंगा तो नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लेना. डन. Yes, sir. Okay, now take the screenshot of this remaining part. Now I am running this program. I am putting some random values inside this. Now I am calculating it. Okay, now take the screenshot of this also. Okay, now I am exiting this program. Okay, so ये तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो सेकेंड के लिए अब आप क्या करोगे? टेक द न्यू फॉर्म, गो टू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन ऐड फॉर्म, देन ओपन. सो इससे आप न्यू फॉर्म ले लोगे इन योर प्रोग्राम. ट्राई टू एनलार्ज इट. अब इसमें हमें सेकेंड क्वेश्चन परफॉर्म करना है. लेट मी शो यू द सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट? डिजाइन अ फॉर्म with two option buttons, factorial and sum of squares. Enter a number in a text box. मीन्स हमें एक टेक्स्ट बॉक्स की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. Write two functions to calculate the factorial of a number and other to calculate the sum of the squares from 1 to the number entered. On click of a command button, call the appropriate function and display the result in the label. मीन्स वॉट? हमें टू लेबल्स की जरूरत है. एक में हम लिखेंगे एंटर अ नंबर और सेकेंड में हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा. ओके,
और हमें 2 ऑप्शन बटन्स लगेंगे, 1 टेक्स्ट बॉक्स एंड 3 कमांड बटन्स। और ये हमें कैलकुलेट करके क्या देगा? Factorial and the sum of the squares. So basically this question is based on functions. So let me quickly design the form of this function. We require 2 labels. So let me take 1 label. Then we required 1 more label for result. So ये label हुआ हमारा result के लिए. Then we required 1 text box जहाँ पे हम number enter करेंगे. Okay, then we required 2 option buttons. So for that we required a frame. So ये एक फ्रेम ले ली, इसमें हमें 2 ऑप्शन बटन ऐड करने हैं। ये ऑप्शन बटन 1 ऐड किया, ये ऑप्शन बटन 2 ऐड किया। ओके, एंड वी रिक्वायर्ड 3 कमांड बटन्स। ओके, अब फिर से अब हमें क्या करना है, इनके प्रॉपर्टी चेंज करने हैं। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द डिजाइन ऑफ द फॉर्म। सी नाउ आई एम डूइंग लिटिल बिट फास्ट बिकॉज अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है। हम कोडिंग में थोड़ा स्लो हो जाएंगे। Then you just click anywhere on the form, then you will find its properties on the right hand side, change its properties. So basically this question is based on functions. So I'm writing its name as FRM, FUN. FUN represent functions. और इसको हम कैप्शन प्रॉपर्टी में लिखेंगे फंक्शन। ओके, आप चाहो तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। Then click on label, change the properties of label. So label is LBL. अब इसमें हम नंबर एंटर करने वाले हैं, सो मैं इसे नेम दे रहा हूं LBL NUM। और कैप्शन प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे एंटर अ नंबर। और यू कैन से फैक्टोरियल हम किसी भी नंबर का नहीं निकालते, हम खाली इंटीजर का निकालते हैं। सो हम इसमें लिखेंगे एंटर एन इंटीजर। ओके, और इसके लिए आप चाहो तो फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दो, सो आपको ये अच्छे से शो हो। सो एंटर एन इंटीजर। Then text box, click on text box, change its properties. So txtnum as the name property because we are entering a number while running the program. Then if you want, you can change the font size also. और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें रखनी पड़ेगी ब्लैंक। देन क्लिक ऑन लेबल टू। लेबल टू नेम प्रॉपर्टीज, इसमें हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है। सो नेम इज LBLRES। कैप्शन इज ब्लैंक बिकॉज इसमें हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। चेंज इट्स साइज। देन गो टू फ्रेम, क्लिक ऑन फ्रेम, चेंज इट्स प्रॉपर्टीज। सो FRA, और इसे हम नाम देंगे FRA सिलेक्ट। कैप्शन में हम लिखेंगे सिलेक्ट। ओके, सो ये दोनों ऑप्शन बटन में से हमें एक सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ क्लिक ऑन ऑप्शन बटन 1। So first one is what? OPT factorial.
and its caption is factorial. ओके, कैप्शन में हमने लिखा फैक्टोरियल। अब चाहो तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो जो आपको ये अच्छे से शो हो। देन सेकेंड वन इज ओपीटी स्क्वायर। सो ओपीटी SQR। और कैप्शन में हम लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। देन इसकी फॉन्ट साइज भी मैं इंक्रीज कर देता हूं। सो ये हो गया इसका। अब कमांड के लिए डालते हैं फर्स्ट CMD कैलकुलेट, CMD CAL for calculation, and its caption property is CM calculate. Font size increase कर दो। Then second one is clear, CMD clear. Then caption is clear. Then font size increase it. And the last one is exit. So CMD exit. और ये आएगा हमारा एग्जिट बटन। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं। ओके, सो बेसिकली ये हो गई हमारी डिजाइन ऑफ द फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कोडिंग। ओके, सो कोडिंग के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे? यू जस्ट डबल क्लिक ऑन कैलकुलेट बटन। सो इसके लिए भी हमें पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यूजिंग डायमेंशन ऑपरेटर। पहले तो हमें नंबर एंटर करना है। सो नंबर के लिए हम वेरिएबल डाल रहे हैं n। देन I डालेंगे बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू यूज लूप, because this program is based on functions. So जब हम फंक्शन रिकॉल करेंगे तो उसका कोड हम एट द एंड लिखेंगे और उसे फिर से रन करना है। ये ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है इन द वर्ड। वहां से हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसे हमें करना कैसे है। तो इसका डेटा टाइप मैंने डाला इंटीजर। देन हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। This variable we required for function, not function. The variable I is used in the program of functions. ये हम यूज करेंगे in the calculation button as integer. Okay. Now wait a minute. Let me copy. So that I can explain, I can spend my time on the explanation.
ओके, अब इसमें देखो यहाँ पे हमने वेरिएबल n कॉमा आई डिक्लेयर किए एज इंटीजर। सो पहले तो हम नंबर एंटर करेंगे। सो हमें नंबर किस में एंटर करना है? इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में। सो इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने नेम क्या दिया? nu txt num.text, और ये वैल्यू एज ए टेक्स्ट रीड होगी। सो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर। सो हम वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे और वो असाइन करेंगे इस वेरिएबल n को। तो उसका आंसर मुझे मिल जाएगा इससे। देन हम चेक करेंगे इफ कंडीशन से, इफ ओपीटी फैक्टोरियल डॉट वैल्यू इज ट्रू, मीन्स जो भी ऑप्शन बटन हम सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू अगर ट्रू रहती है तो हमें आंसर देगा फैक्टोरियल n। ओके, और इससे हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। सो रिजल्ट के लिए हमने क्या यूज किया था? LBLRES डॉट, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की? कैप्शन प्रॉपर्टी। सो LBLRES डॉट कैप्शन, इससे हमें मिलेगा फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर n, विच इज नथिंग बट दिस c। else if opt square dot value is true, then ये देगा हमें ये वाला फंक्शन, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n, और इसे हम LBLRES डॉट कैप्शन में प्रिंट करेंगे। डॉट कैप्शन, सो दैट इज सम ऑफ स्क्वायर इज दिस नंबर c। एल्स हमें एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसमें लिखा होगा प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस, और यहाँ पे हमारा क्लोज होगा एंड इफ स्टेटमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ये फैक्टोरियल n और सम ऑफ स्क्वायर यूज किया है। ओके, बेसिकली दीज आर आवर फंक्शंस। सो ये फंक्शंस हमने यूज किए, अभी लिखे कहाँ पर है जो हम यूज करें? सो एट द एंड हमें इन फंक्शंस को भी रिकॉल करना पड़ेगा। ओके, सो ये है वो फंक्शंस। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल n रिकॉल किया है। सो ये बेसिकली ये फैक्टोरियल क्या है? ये फैक्टोरियल हमारा है फंक्शन। सो इस फंक्शन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला सिंटैक्स, दैट इज प्राइवेट फंक्शन। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं फैक्टोरियल फंक्शन, और इसे हम लिखेंगे बाय वैल्यू a एज इंटीजर एज डबल। फिर फैक्टोरियल की वैल्यू हम इनिशियली लेंगे 1। सो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। फिर हम जाएंगे फॉर लूप में। सो फॉर लूप चेक करेगा फॉर i इज इक्वल्स टू 1 टू a, जो भी वे a हमने यहाँ पे लिया है। ओके, सो 1 टू a चेक होगा, बाद में हम इस पे चलेंगे फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय i। अब i कौन सा है? सी, यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? इनिशियली 1, और फॉर लूप में भी हम इनिशियली i की वैल्यू 1 लेते हैं। सो फैक्टोरियल क्या देगा मुझे? फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 मुझे क्या देगा? 1। फिर नेक्स्ट से दूसरा i सिलेक्ट होगा, सो i की वैल्यू 2 सिलेक्ट होगी। फिर यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू इनिशियली थी 1, 1 इंटू 2 गिव्स मी 2। फिर यहाँ से नेक्स्ट से फिर से i इंक्रीज होगा, नाउ दिस टाइम i बिकम्स 3। सो इनिशियली फैक्टोरियल की वैल्यू अब बन जाएगी 2, 2 इंटू 3, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये फॉर लूप चलता जाएगा। कहाँ तक?
ये जो नंबर ए हमने यूज किया है वहां तक। देन ये तो हो गया हमारा फैक्टोरियल फंक्शन। सिमिलरली आप यूज करोगे सम ऑफ स्क्वायर फंक्शन। सो सम ऑफ स्क्वायर में सेम सिंटैक्स रहेगा। आपको सम इनिशियली सम वैल्यू 0 अज्यूम करनी है। आप आई लोगे 1, फिर आप यहाँ पे डू वाइल लूप यूज करोगे। सो डू वाइल whenever i is less than or is equals to a means जो a हमने यहाँ पे लिया है। सो इनिशियली सम ऑफ स्क्वायर कितना था 0, सो यहाँ पे 0 आएगा प्लस आई इंटू आई। अगर आई 1 होता है सो 1 इंटू 1 इज 1, सो ये इंक्रीज हो जाएगा 1 से। फिर यहाँ से आई से मुझे ये वेरिएबल आई इंक्रीज होगा आई प्लस 1 से। अगर इनिशियली आई की वैल्यू यहाँ पे देखो, इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, सो आई इंटू आई देगा मुझे 1। फिर ये यहाँ पे चेक होगा, सो आई प्लस 1 होगा, दैट इज 1 प्लस 1 2, सो आई की वैल्यू बन जाएगी 2। फिर से ये डू वाइल लूप में जाके चेक होगा 2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू ए। इफ यस देन यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू बन गई थी 1। अब यहाँ पे चेक होगा आई इंटू आई, दैट इज 2 इंटू 2, सो ये बन जाएगा 4। 4 प्लस दिस नंबर 1 गिव्स मी 5। फिर से ये आई यहाँ पे जाके इंक्रीज होगा, सो 2 प्लस 1 बिकम्स 3। सो ये 3 फिर से यहाँ पे डू वाइल लूप में चला जाएगा एंड फिर से ये फंक्शंस ऐसे लूप में चालू रहेंगे। कब तक? जब तक हम इस नंबर ए को हिट नहीं करते। और एक बार अगर हमने इस नंबर ए को हिट कर दिया तो हम आउट आ जाएंगे फ्रॉम दिस लूप। ओके, देन txt num डॉट टेक्स्ट, ये हमें रखना पड़ेगा ब्लैंक। देन lbls डॉट कैप्शन, ये हमें रखना पड़ेगा ब्लैंक। फैक्टोरियल की वैल्यू हमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स अज्यूम करनी पड़ेगी और ओपीटी स्क्वायर की भी वैल्यू हमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स अज्यूम करनी पड़ेगी। ओके, ये आएगा हमारा क्लियर के लिए सिंटैक्स। और cmd एग्जिट में हम खाली लिखेंगे एंड। सो पहले तो हम इसे रन करके देखते हैं ये प्रॉपरली वर्क होता है या नहीं होता। सो नाउ आई एम रनिंग द प्रोग्राम। सो यू कैन सी रन करने के बाद जो हमारा इनिशियल प्रोग्राम था वही आ गया। तो पहले तो हम इसे एग्जिट करेंगे। नाउ यू गो टू प्रोजेक्ट, लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज। प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में जाना है। वहां पे हमारे फॉर्म का नेम क्या है, FRM FUN, सो वो सिलेक्ट करना है। देन प्रेस ओके। ओके, नाउ आई एम रनिंग द प्रोग्राम। सो यू कैन सी ये प्रोग्राम रन हो रहा है। अब मैं कोई तो एक सिंपल नंबर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 4। अब 4 का फैक्टोरियल आपको पता है क्या आता है? व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? यस, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? दैट इज 4 से आपको 1 तक रिड्यूस करना है और नंबर को मल्टीप्लाई करना है, विच मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नंबर आएगा 24। सो अब मैं फैक्टोरियल पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे 24 आता है कि नहीं आता। सो कुछ नहीं आया बिकॉज हमने ऑप्शन बटन्स पे कुछ भी नहीं क्लिक किया था। सो अब मैं फैक्टोरियल सिलेक्ट करता हूँ और कैलकुलेट पर प्रेस करता हूँ। सो यू कैन सी फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर पे क्लिक करूंगा और कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ, सो सम ऑफ स्क्वायर इज 30।
That is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. So 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16. So 16 plus 9 25, 25 plus 4, which is nothing but 2 का स्क्वायर is 29 और 1 का स्क्वायर is 1, which means 30. So प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क हो रहा है. अब क्लियर बटन पे क्लिक करने के बाद क्लियर हो जा रहा है. एग्जिट पे क्लिक करने के बाद एग्जिट हो जा रहा है. समझा? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब मैं इसे स्क्रॉल करता हूं और फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. Now take the screenshot of this also. ओके, अब मैं इसे रन करता हूं और हमें एक आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट चाहिए. सो नाउ आई एम रनिंग इट. यहाँ पे अब मैं नंबर डाल रहा हूँ 5. 5 का फैक्टोरियल आता है 20. सो फैक्टोरियल पे क्लिक करने का और कैलकुलेट बटन प्रेस करो और चेक करो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 और नॉट. सो यू कैन सी फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. अब सम ऑफ स्क्वायर 30 आया था, बाद में 30 में 5 का स्क्वायर भी इंक्लूड होगा. सो 30 प्लस 5 स्क्वायर इज 25. सो 30 प्लस 25 गिव्स मी 55. सो आंसर आएगा 55. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. अब यहां से मैं सम ऑफ स्क्वायर्स लिखता हूं, मीन्स सिलेक्ट करता हूं और अब कैलकुलेट बटन पे फिर से प्रेस करता हूं. सो यू कैन सी सम ऑफ स्क्वायर इज 55. So take the screenshot of this also. Now I am clearing it and exiting it. So यहाँ पे हमारे ये दोनों प्रोग्राम फिनिश होते हैं. अब किसी को कोई डाउट है ये सेकेंड प्रोग्राम में, देन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट. Yes, any doubt? No, sir. Okay. So if there will be no doubt, so here I am announcing that here we have completed our practical number 3. So thank you for attending this practical. Now, if you don't have any doubt, then you can leave the meeting. Thank you, sir. Welcome everyone.